back to another episode of Reclaiming Season 2 of Your Life. I'm here again with another inspiring story and another inspiring guest who is actually a self-made woman, and she's going to share with us her journey of 15 years of building her career and now being a working mom and a lot of different things like we have talked about before as well, moving from one city to another. I have today with me Midhat. कैसी हैं आप Midhat? ठीक ठाक, thank you. So Midhat, I would like you to give your introduction because I believe कि मैं उसके साथ justice नहीं कर पाऊँगी. The most important thing जिसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बात की है is women supporting their family financially and women paving way for their family, their siblings financially. How was that journey for you? So I started supporting my family very early in my educational and personal journey. Back in 2007, when I was no more than 18 years old, I started working while I was still doing my bachelor's, and since then, until 5 years ago, till I got married, I was working and supporting my own family as well. So it was an interesting way, interesting path for me to take, since I come from a so I come from a family of very strong women. Because my grandmother, my maternal grandmother, she raised 8 children by herself. Wow. And for me to stand up and support my family, it was not something that was unheard of, unseen in my own family, in the perspective that I came from. So my grandmother, she got widowed, but for me, my mother got married at a very young age. She got married at 16. In fact, she was before 16. She is only almost 17 years older to me. So my father, when he had an accident, when I was maybe 14 years old, my youngest brother, he was only 3 at the time. And since then, back of our mind, we all knew that things are not going to remain the same. My grandfather kept on supporting us until he could, but eventually it was time for us to stand up. Yeah. And when we did, it was, even though it was not something new in my family, in my maternal side of the family, even from the paternal side, all my pupos, they are working, they have their own careers. शादी हो भी गई किसी की तो स्कूल जॉब्स या कुछ ना कुछ सबने किया, तो स्टार्ट कर दिया काम करना. लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस तरह से थी कि ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग in the larger circle, that since we do not have a male figure supporting us, Yeah. and these girls are bearing the expenses of the house and helping with everything, that was very difficult, and especially for my mother, because maybe she got married young, maybe whatever the reason was, it was very, very difficult for her to accept. And some time ago she said, do not say anything like that. It seems like you've just made me stand on the road. And I was like, but you're the same woman who says you're so proud that your sons are working. Can you not be proud of your daughter working in the same manner? That is all I ask for you. And that thing, maybe it took 15 years for that to sink in. And but things have developed much better after that. Once the understanding is there that a woman can also support the family in the same manner that a boy can. So like you had to go through all those जिसको अब हम आके स्टीरियोटाइप्स का नाम दे लेते हैं और वो सारे हाँ. नैरेटिव्स के
बेटियां जो हैं वो काम नहीं कर सकती, अगर करती हैं तो इट इज ऑलवेज थॉट ऑफ लाइक, मतलब वो वाला एक इक्विलिब्रियम नहीं आता कि अगर बेटे काम कर रहे हैं तो हाँ ठीक है वो कर रहे हैं, पर अगर बेटियां कर रही हैं तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, ऑब्वियसली द प्रेशर ऑफ मैनेजिंग योरसेल्फ इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, वो तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एंड दैट इज अ होल अनदर एपिसोड टू डिस्कस अबाउट कि जिन खवातीन के साथ कोई ग्रोन अप भाई नहीं होता या बाप का फिगर नहीं होता, उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत मुश्किल होती है, लाइक यू हैव टू maintain a certain aura outside कि मैं इस तरह काम करती हूँ, this is how I go, and then you had to make your mother get comfortable into this idea of her daughters working in as well. I'm sure that must have been very difficult, और वो journey it took 15 years like you said, and now she is like, she talks about all those years कि she does, and even before she did, it's just that she for her to accept that the finances are supported and managed by a daughter, a married daughter, now like for the past 5 years, a married daughter, it's very difficult for her to accept it, and it's very difficult for her to sort of say it out loud, I would say. You know, since I said that every woman, or at least more than half of the women in my family on both sides are working, and for us to have worked was not the thing that sort of unconventional, felt, yes, that did not feel awkward for her. What made her awkward was the knowledge and understanding, or the common knowledge of the girls being the financial support in our house. And definitely, I mean, if we think from her perspective as well, so she was obviously, she must have been under a lot of pressure from the set narratives from the society as well. मतलब बेशक आपके घर में वो एक support होगी या वो एक unconventional चीज़ नहीं होगी, but still people around they make a point कि वो उस पे किसी ना किसी तरीके से comment कर ही रहे होते हैं. हाँ taunt कर देते हैं. Exactly. कुछ और नहीं तो मतलब there are people are mean, people out, देसी people, they don't mind being mean. ठीक है, उन्हें प्यार मोहब्बत अच्छी बातें करते हुए परेशानी होती है, मीन होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती. तो मतलब देयर आर पीपल हु आउटराइटली से कि बेटियां ब्याह दोगी तो खाओ पियोगी कहाँ से. और मतलब आपको नहीं पता, आपको why can a married daughter not support? Exactly. I mean, if a married son is supposed to do it. Son is supposed to do it. He is supposed to increase his share in the household when he gets married. But a married daughter, God forbid, she is giving money to her house. However, if you're a working woman, you are expected to contribute to your husband's household as well. Exactly. Like not in all cases. I don't support my husband's household. I buy my own things. But financially, matlab, I see that even on women groups on the social media these days, it seems to be a sort of an unsaid expectation, and sometimes verbally said as well कि जी तुम अपने, ये तुम्हारा घर है, इधर पैसे दो. अपने घर चाहे देती है या नहीं देती वो वाला नहीं, मतलब तुम्हारी तनख्वाह का है, पूरी की पूरी तनख्वाह चाहिए. तो वो दैट इज समथिंग जो कि हमारी सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेबल ही नहीं है. और मतलब वही लाइक इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएट हो जाते हैं कि लाइक सो चलेंगे तो एक पैसे देना तो एक बहुत ही वो एक फ्राउंड अपॉन चीज़ है ना. उससे भी अगर हम छोटी बात कर लेंगे, लाइक a man is supposed to take care of his parents when he's married, and his wife is supposed to do the same, but God forbid a girl, she can't do it. I mean, if she doesn't have more siblings to take care back for her parents, तो ये तो नहीं possible ना. मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब जो roles हैं वो इतने pre-defined और actually one-sided roles हैं कि वो एक side को हर तरीके से justify कर रहे हैं, दूसरी साइड के बारे में you're not supposed to question them, you're not supposed to actually raise a point कि अच्छा फिर वहाँ पे कैसे होना है, वो तो हो ही नहीं सकता. But that's actually a very good point जो आपने raise किया है कि why can't married daughters also support their families. मतलब इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा
कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन रेज करेंगे, बल्कि इसके बारे में क्यूरियोसिटीज़ होती हैं. आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु व्हेन गॉट मैरिड, वो अपनी फैमिली सपोर्ट करी थी, मतलब दे वर ऑल डॉटर्स, भाई नहीं है कोई. So there were actually curiosity in the family कि do you still support your mom and dad? I mean, why are you still doing it? And it's a मतलब एक अजीब सी बात है ना कि हाँ, लड़के भी तो करते हैं भाई. हाँ, उस पे तो कोई इस लड़के तरह तो क्वेश्चन करते नहीं ही उठाता. हैं. तो हाँ, आप मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मेरा बेटा तो मुझे सपोर्ट करेगा, हाँ. लेकिन जब मेरी बेटी चली जाएगी वो नहीं करेगी, हाँ. या मतलब किसी और की बेटी हम लाए हैं तो हम नहीं उसको करने देंगे. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल. ये एक बहुत अजीब सी बात है, पर ये ऐसी है, और आई एम श्योर कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा, जिस तरह ऑल दी अदर दोज वो जो जनरेशनल नॉर्म्स चलते आ रहे हैं उनके ऊपर उठाया जाता है क्वेश्चन. ओके, कमिंग बैक टू, सो यू हैव बीन फ्रॉम लाहौर सिंस, आपकी वो Yes, वाली सिटी इंटर सिटी जर्नी क्या है? So I'm born and brought up in Lahore. I moved to Islamabad about 5, 6, no, actually more years ago. So about 10 years ago, I moved to Islamabad as a mid-career professional. So I am born and brought up in Lahore, but I moved to Islamabad in the middle of my career for a better job there. My mother had some apprehensions about it, Yeah. but my grandmother, my nanny, she supported me, and That's amazing. she was a very strong woman. She's an inspirational woman for me. So she supported me, and she told my mother, don't stop her now. She stopped me once when I got a job offer from Islamabad, and I did not go. And at that time, I was going through a difficult phase in my job. My company was shut down. My TV channel that I was working at, it was shut down, and we were all laid off. And then half of those people, they went to another channel that was opening up in Islamabad. They all moved to the other city, but at that time my mother stopped me. So I kept on staying in Lahore, found another job or two, and continued to work, because जाहिर है काम किए बगैर ना तो मेरा गुजारा था. I would have gotten depressed at that time. Yeah. अगर मतलब उसके लिए वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, मिडिल ऑफ द करियर. और फिर ये कि ना फिर मैं वहाँ खुश भी नहीं थी. तो फिर वी kept on applying to different jobs and all that. So there was a year that I had work but did not like my work. And then something amazing came in Islamabad. So my mother was very apprehensive, and I went even then. I went and I stayed in a very dingy hostel environment because it was safer and it was more traditional in my mother's view. Acceptable as well. हाँ, एक्सेप्टेबल ना कि वो बस हाँ कोई कुछ कहेगा नहीं, हॉस्टल रहती है. हाँ, exactly. तो फिर मैं वहाँ चली गई इस्लामाबाद. 1 year in, I got another opportunity. I moved to the United Nations. I started working there. फिर the next 5 years, actually, yeah, say 5, 6 years, I kept on working in Islamabad. I have moved back to Lahore about 3 years ago now, when my daughter was almost 6 months old. In that same phase, I got married as well. My husband was working in Lahore. So I kept on working. In the time मेरी शादी भी हुई, पर मेरी ससुराल इस्लामाबाद में बेस्ड है. और मैंने पहले तकरीबन 2 साल इस्लामाबाद में गुजारे. वहाँ पर मैं काम करती रही. मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे, वो लाहौर में बेस्ड हैं. तो पर वो बहुत सपोर्टिव थे. फिर उनकी अपनी फैमिली भी वहाँ पर थी, तो उन्हें कोई परेशानी भी ऐसा सच नहीं थी. तो मैं वहाँ पर काम करती रही 2 साल. लेकिन फिर मेरी बेटी पैदा हुई, और फिर आई टोल्ड यू एज वेल दैट मेरा थोड़ा सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी ट्रिगर हो गया था. तो उसके बाद आफ्टर अ वाइल आई क्विट माई जॉब. इट वॉज बिकमिंग वेरी हैक्टिक टू वर्क in another city, to have my husband here, to have another responsibility of my daughter as well. Yeah. And my family is also sort of like my in-laws family. It is sort of based a little out
साइड ऑफ इस्लामाबाद, सो सबर्बन इस्लामाबाद में समझ लें. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कम्यूट और वो सब कुछ, सो इट वाज ऑल लाइक triggering my depression even more and anxiety more, I would say. तो वो जो थी, उसके बाद I quit this amazing job that I had, and then I moved to Lahore, back to Lahore. So I'm sure quitting that job must have been a very difficult decision, obviously. पर वो, I mean, you should actually know when to quit. ये भी एक बहुत important चीज़ है. I think, life में. That's true. And although थोड़ा सा आप मतलब you even if you take a decision, it does not mean that you may not regret it, or Yeah. you may not remember the time afterwards. So but I think it was the right thing to happen, and it was also the right time in a lot of different sense. Yeah. Of I mean, a little after that COVID struck and all. I think it just worked out well for us as a family, as a person. It helped me recover. So now you're working in Lahore, and like, what are you doing at the moment professionally? आप क्या कर रही हैं? So I work at an educational institution, and I'm working as a branding manager. So it is the same career path, technically something different, but in the same spectrum of work. Yeah. Because I started as a journalist, and then I went on to become a development communications professional, and I'm still doing communications as part of my job. Okay, now coming to the most important part of this podcast, जिस पे I'll come later on, but how is it for you to work as, to be a working mom? What has been your experience so far? What has been the most difficulties that you have faced so far? Or how has it been working for you? So, as I told you, initially I did have a few months of very difficult working situation, but after that, when I started working again, my daughter was 1 year old. So I quit when she was 7-8 months, and then I started working when she was a year old, and then it was also the time of COVID. So it was easier for me than many others, since I had to start working at home on a remote working condition. So it was much better, to be very honest. Then my daughter started going to daycare. Yeah. My workplace has a daycare, and a very good one at that, and very few kids were coming at that time as well, because it was COVID still. Most people were still working from home. Their mothers were there, so my daughter had the opportunity to develop a bond and to be able to get out of the house, which Yeah. was a big thing for us, an COVID only में. child during COVID. तो वो बहुत खुशी से डे केयर जाती थी. वो मतलब 1 साल की हुई तो हमने उसकी बर्थडे डे केयर में की, और वो बहुत खुश थी. और वो उससे पहले डे केयर जाती थी, उसे कहती थी मेरा डे केयर स्कूल है. अच्छा. सो वो डे केयर स्कूल कहती है आज तक भी ना. सो शी कम्स होम एंड शी सेज अब मैंने डे केयर स्कूल जाना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है वहाँ. तो फिर वो डे केयर जाना शुरू हो गई, और 5 बजे तक 4 बजे तक जिस टाइम भी मुझे 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है या ज़्यादा भी, तो मैं उसे डे केयर छोड़ देती थी, और मेरे लिए आसान था. ऑल्सो आई लिव ऑन द सेम कैंपस, तो मेरे लिए इसलिए बहुत आसान है. आई एम नॉट सेइंग एट ऑल दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर, इट मे बी एज सिंपल फॉर अदर पीपल, बट आई हैव बीन, अल्लाह का शुक्र, आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट एस्पेक्ट. तो it's good. It's not so difficult, and it's very good for my own sanity as well. I mean, it's अच्छी चीज़ है कि हम जो चीज़ें हमारे लिए आसान हैं, जिनको हम उन आसानियों को भी अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, और लाइक समवट थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करें कि यार दिस इज़ ईजी फॉर मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी बिलीव के द गुड थिंग्स हैव टू कम थ्रू द डिफिकल्ट वेज ही वो आपको आ सकती हैं, या
as a working mom, I'm sure it is not that easy for you. Obviously, आपको एक emotional parenting भी करनी होती है अपने बच्चे के साथ, regardless आपका अपना emotional status क्या चल रहा है. It is difficult in that way, लेकिन it's good to appreciate the easier things, the things that are making it easier for you. So, now the most important part of this podcast or this episode is talking about postpartum depression, right? So we know कि अब ये term is very, most of the moms are familiar with it और अब इसके बारे में बात भी होती है. But back then, even I would say it might come as a surprise, but even 2-3 years back when I talked to some of my friends who have been moms to like now 12 years old or 16-year-olds, they never knew that they had postpartum depression. They just told some very, how should I say, unconventional incidents or thoughts that they had about their kids while they were babies, but उनको ये नहीं पता था कि postpartum depression भी कोई चीज़ होती है, ये exist करती है और इसका भी कोई element होता है for a new mom. So बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. इफ़ यू कैन टेल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इट, एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर. मेरे केस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ज़रा कोई ट्रिगर था जो कि जिससे मेरा ट्रिगर हुआ पोस्टपार्टम. सो एंड देन आई रियलाइज दैट आई sort of have a high functioning depression even if it is there. मेरी बेटी की जो बर्थ थी वो बहुत डिफ़िकल्ट हुई. She couldn't have a natural birth and we had to go for an emergency C-section 2 days into labor. And the doctor, she was so horrible, I'm sorry, but she was so horrible in that सेंस के उनको अपना क्लिनिक का टाइम पूरा करना था. मैं पिछले दिन सुबह 4 बजे से पड़ी हुई हूँ, अगले दिन शाम 4 बजे भी वो अपना क्लिनिक 4 बजे तक पूरा करके 4:20 पे उन्होंने मेरे सी सेक्शन किया. उस सारे सिचुएशन के बाद माय बेटी हैड इनहेल्ड एस्पिरेटेड मिकोनियम during birth. Meconium is like basically she pooped in the womb. Okay. So and she aspirated it. So her lungs were not working properly. She could not take oxygen जब वो पैदा हुई. मेरा तो बिकॉज मुझे एक दफ़ा एपिड्यूरल लगा, वो ख़राब हो गया. उसके बाद मुझे दोबारा एपिड्यूरल लगा, मेरा बीपी फॉल हो गया था 30/40. आई सॉ ऑन द मॉनिटर एंड देन आई फेंटेड. And after that, when I came to, there was no baby. They told me the baby is in NICU, but who knows if they're talking, if they're not just trying to console me. Because the last thing I remember from before the surgery was my baby being in stress. And that too happened when मैंने बहुत शोर मचाया कि आप चेक तो करें कि बेबी का क्या हार्ट बीट लेवल है, मुझे लग रहा है कि कुछ मसला है. एंड दे चेक्ड एंड इट वाज मच लोअर देन इट शुड बी. बेबीज हैव लाइक अ stronger heartbeat when they're inside than a normal person, and it was much lower. It was like maybe 70-60, and that was not normal. So I started. ज़ाहिर है हम अब आजकल ख़वातीन इस तरह की हैं, हमने पढ़ा होता है सारा कुछ, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें अंदाज़ा होता है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकेंगे. तो मुझे तो लास्ट वो याद था. उसके बाद मेरे पास बच्चा नहीं. दिन गुजरा, रात गुजरी, अगली सुबह हो गई. देन आई वाज लाइक बस हो गई मेरी, मुझे लेके जाओ. तो माय हस्बैंड ब्रॉट फोटोज एंड आई वाज लाइक लुक्स अ बिट लाइक यू बट आई डोंट नो. I still want to see that baby. So then they took me on a wheelchair into the NICU and I saw her and I was so glad. But उससे मेरा डिप्रेशन कहें, एंजाइटी कहें, वो ट्रिगर हो चुका था. और फिर वो मेरा इस तरह की सिचुएशन थी कि आई नो पीपल हैव other thoughts as well, but it can be different for anyone. For me, I had huge separation anxiety. सेपरेशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा कि मैं उसको यहाँ गोदी से रख ही नहीं सकती. मैं रख ही नहीं सकती, मेरे से उतारा ही नहीं जाता गोदी से.
मुझसे कोई मांगे तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं कैसे दूंगी। अच्छा, और उसके बाद ज़ाहिर है वो आई टोल्ड यू आई वाज वर्किंग फॉर द चिल्ड्रंस Yeah. ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर, तो मुझे ये भी पता था कि बच्चों को क्या हो सकता है। जो कि और उसको हो गया, उसको फ्लू लग गया बच्चों से ना, मतलब घर में और किसी से भी, मतलब वो उस बच्चे को, छोटे को दोबारा अभी वो निक्यू से निकली थी, उसको फ्लू लग गया। वो मार्च था, एलर्जीज भी मौसम था, सब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैव बीन द ट्रिगर। उसको इतना फ्लू हो गया कि उसे दोबारा एनक्यू लैंड करना पड़ा 6 डेज़ की हालत में, मतलब 2 दिन की होके निकली थी और फिर छठे दिन दोबारा चली गई। और फिर तो मैं साथ गई अंदर, मदर्स कैन गो समटाइम्स व्हेन इट्स जस्ट फॉर स्मॉलर ट्रीटमेंट, पर वो फिर वहाँ चली गई। फिर से उसको दोबारा लेके आए। अब मेरे से बिल्कुल नहीं दिया जाता था किसी को ना, मतलब व्हेन आई थिंक बैक इट वाज रॉन्ग, it was not normal, and when I see around, it is not normal as well, but not in your control at the same time. हाँ, नॉट इन माई कंट्रोल। तो मतलब मेरे लिए वो इतना डिफ़िकल्ट है कि अभी मैं अपनी बेटी के स्कूल में किसी मदर से मिली जो अपना छोटा सा बच्चा साल के अंदर नीचे वो लेके बैठी थी, तो मैंने उसे टच नहीं किया। मैं किसी के बच्चे को उस वक्त तक टच नहीं करती कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे के साथ हुआ था। तो वो मतलब इट हैज़ sort of shaped the way, and I told my daughter, do not touch the baby. She is like turning 4 in a few months. But I told her, do not touch the baby, she can get sick. I remember I told you how germs get transferred, because she was asking me just last night, how did germs come into me, मेरे खांसी कैसे हुई। और वो मेरे बेटी के लिए वो पूरा जो 2 4 6 दिन का स्पेल था, इट हैज़ डिफाइंड हर चाइल्डहुड एज वेल। उसको एजमेटिक है, वो उसको कांस्टेंट खांसी नज़ले का वो रखता रहता है। उसके लंग्स वीकन थे बाय बर्थ, जो कि अभी तक स्ट्रगल करते हैं अक्सर। किसी तरह की एलर्जी हो, किसी तरह का वायरस हो, सबसे पहले वो कांटेक्ट कर लेगी। तो वो मतलब ये कि मेरे लिए वो वाला टाइम जो था ना, वो मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए डिफाइनिंग था। तो मेरी एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई। मेरी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मेरी सास भी मांगती थी बच्चा, तो मेरे से दिया नहीं जा रहा होता था। हालांकि मेरे और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी टॉक ऑल द टाइम, एवरी डे आई कॉल हर माई सेल्फ। तो मगर मेरे से नहीं दिया जाता था, मेरे से और फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर देती थी मुझे कि कोई मुझे क्यों बता रहा है कि इसको कैसे पालना है। वो हालांकि वो तो अपनी मतलब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट ही कर रहे होते थे ना मेरी तरफ। और मतलब मुझे उठ के बच्चे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। माई मदर इन लॉ वॉज वेरी हेल्पफुल। शी इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव वुमन, इवन एट हर एज। शी इज़ ओल्डर, मच ओल्डर देन माई मदर इवन, थोड़ी मतलब। लेकिन ये कि बिकॉज मैं अपनी अम्मी की पहली बेटी हूँ, फिर उनके पहले भी बच्चे, तो वो still she is very active and she was doing everything, but I was sort of triggered by, मेरी अम्मी ने मुझे कह दिया कि इसको फीडर लगा दो अभी से। क्यों फीडर लगा दूँ, इन्होंने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया। मतलब I was like constantly struggling within myself. Everything just hurt me, everything was difficult for me to accept, and मतलब सिवाय मेरे हस्बैंड के, जो कि मतलब मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उस वक्त भी वो इतना छोटा सा बच्चा एक बड़े से आदमी के लिए उठाना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो बड़े खुशी से उसे गोदी में लेके, उसे जैसे मैं सुलाती थी उससे भी अच्छा सुला रहे हैं, सब कुछ कर। सिवाय मेरे हस्बैंड के मेरे से एक्सेप्ट ही नहीं होता था जैसे कोई पकड़ सकता है, जैसे कोई हाथ लगा सकता है। मैं अपनी अम्मी को गोद में नहीं देना चाहती थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। एंड देन आई हैड कमिटेड the consultancy that I was working for. It was a Germany based consultancy. It was a German firm which was working for a European embassy here, and I was hired by them to work here as their representative for that embassy. और मैं उसके साथ मेरी कमिटमेंट थी कि मैं 3 महीने बाद आ जाऊँगी, क्योंकि मैं बेबी के पैदा होने से 20 दिन पहले तक काम कर रही थी। और बेबी के
पैदा जब वो हुई है उस वक्त मेरा एक बहुत ह्यूज इवेंट चल रहा था, एक फेस्टिवल अरेंज करवाना मैंने स्टार्ट किया था, जो कि चल रहा था उस टाइम पे ना। वो मतलब मैं उसकी सारी अरेंजमेंट्स करके और छोड़ के आई थी, लेकिन जो नए लोग आए थे दे कुडंट, तो मैं उसके साथ भी काम करती रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम। पर जब मैंने जाना शुरू किया तो वो एक इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। I'm sure that must have been very difficult for you. हाँ। Yeah. So, how did you like? Where are you at this point? आपने किस तरीके से वो सारा फेज कैसे अपने आप को उसमें से निकाला? Like, did you go to therapy or how did you manage it? Unfortunately, I did not go to therapy and I did not even think of therapy. क्योंकि जो the kind of anxiety and whatever else feelings that I felt, I'm a very high functioning person. I do not even, you know, I'm incapable of accepting help with grace. That's Yeah. I would say, ठीक है। Yeah. तो वो मतलब इतना मेरे लिए वो इतना ऑब्वियस नहीं था शायद मुझे। तो मुझे वो ऑब्वियस बाद में हुआ। मेरी नंद फिल्म मेकिंग में डिग्री कर रही थी एंड फॉर हर फाइनल प्रोजेक्ट शी मेड अ फिल्म ऑन postpartum depression. Wow. Because she saw it. एंड मतलब हमारे घरों में तो मतलब ईमान की कमी है, नमाजें पढ़ो, ये करो, वो करो, इसी तरह की डिप्रेशन यही है ना कि भाई तुम लोग अल्लाह में पे ट्रस्ट ही नहीं करते, तुम्हें यकीन ही नहीं है कि शुक्र अदा नहीं करते। हाँ, शुक्र अदा नहीं करते, बच्चा भी है, मियाँ भी है, अच्छी लाइफ चल रही है, करियर अच्छा चल रहा है, मतलब किसी का भी, मेरा या मियाँ का, जिसका, तो मतलब फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, भाई तुम क्यों डिप्रेशन में हो। तो लेकिन उसको एज somebody who was seeing it from the outside, she realized it. And then I realized कि हाँ अच्छा, मैं समझती थी हाँ ठीक है सेपरेशन एंजाइटी है मुझे, इतना मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और मैं मुंह से कहती थी कि मेरे से नहीं छोड़ा जाता। मैं बच्ची को छोड़ के जाती हूँ जब घर पे, तो हालांकि मुझे पता है कि कोई ना कोई है उसको देखने के लिए, उसकी दादी हैं बहुत प्यार करती हैं बेतहाशा, तो वो देख रही हैं, लेकिन मुझसे छोड़ा ही नहीं जा रहा मुझसे। लेकिन वो उसने इसको कैच कर लिया था कि अच्छा हाँ क्या होता है, अच्छा क्यों हो रहा है। एंड बीइंग अ यंग वुमन शी वाज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ इट, शी इज़ मच यंगर देन मी, मेरे से 12 साल छोटी है। तो वो उसने देख के ना उसने उस पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा आई डिड हैव it, I did not have it in the sense कि जी you have negative thoughts towards your baby or you have something else, you know, or I was unable to function, but वो सारा कुछ होने के बावजूद भी it was what it was. You just have to accept it. यही था. And it can be different things for different people. It Like is always I have different even things. heard of stories where people, women went through this sort of postpartum depression. उनको ये लगता था their baby is trying to kill them. I even heard those kind of stories that I'll just look back and my baby is standing there with a knife in in her hand. So yeah, it can be different things for different people. But वही चीज़ है कि उसको accept करना और उसके बाद प्रोसेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर तो यू आर सॉर्ट ऑफ स्टक इन अ प्लेस। और यहीं पे लाइक यू टॉक्ड अबाउट, अब आपके सिनेरियो में शायद वो चीज़ डिफरेंट होगी, बट फॉर ऑल द यंग मदर्स अराउंड अस व्हाट वी सी इज के अच्छा बच्चा पैदा होता है, ऑब्वियसली द मॉम इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, जिसके ऊपर मैं बात हमेशा ये करती हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि कैसे मैं चीज़ों को रिएक्ट कर रही हूँ, सम ऑफ इट, only some part of it is in my control, उसके बाद my body is releasing some chemicals जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, obviously वो कुछ पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ आप नहीं कर सकते। अब फॉर अ यंग मॉम प्रॉबेबली आपके सिनेरियो में वो किसी और सेंस में होगा, लाइक कि आपने परसीव, जैसे आपने पॉजिटिवली किया कि पीपल वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कि आप इसको ऐसे पालो, ऐसे करो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस women go through this immense pressure of everybody telling them how to raise their baby, ठीक है, and it always comes with this added
प्रेशर ऑफ कि हम ऐसे करते थे, ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे करती थी, इसको ये खिलाओ, वो करो, तुम्हें ये नहीं पता. सो आई थिंक वो जो सारी चीज़ें कंबाइन होके आ जाती हैं, वहाँ पे एवरीबडी फॉरगेट्स अबाउट द पार्ट दैट अ मदर ऑल्सो नीड्स the same amount of care and love just that जो उस बच्चे को मिल रही है वो उस माँ को भी चाहिए, because obviously sort of वो भी एक born हुई है ना अभी, मतलब पहले वो माँ नहीं थे, वो माँ बनी है. So she is feeling a lot of things. इसके बारे में यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आई थिंक बात नहीं होती है. और लाइक यू ऑल्सो मेंशन कि आपकी सिस्टर इन लॉ ने वो चीज़ पिक कर ली, बट आई बिलीव कि प्रॉबेबली द अदर पीपल अराउंड यू ये चीज़ें नहीं समझ आती होंगी लोगों को, या आपके नज़दीक अब चेंज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट. लाइक फॉर पीपल अराउंड यू, डू यू थिंक कि अब the families around are also talking about something No, they as are not. postpartum depression? No. Not the older women, not the older family members. Yeah. ठीक है. मेरे मियाँ अब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, Yeah. I see a change. तो Yeah. वो मतलब कि हाँ, I was going through it and I am very vocal about it now. क्योंकि since I've recovered sort of, I feel like I have recovered at least. मैंने कोई वैल्यूएशन तो करवाई नहीं है जिससे मुझे अंदाज़ा हो. तो लेकिन ये कि बड़े लोगों के लिए, घर में फैमिलीज़ के लिए ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो इतना टैबूड है, इतना डिफ़िकल्ट है कि वो मतलब डिप्रेशन हो गया तो मतलब पागल हो गया ना बंदा. बिल्कुल मतलब बिल्कुल फारिग हो गया. तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. और ख़वातीन के लिए क्योंकि आपका ज़्यादा पाला तो ख़वातीन से ही पड़ता है आफ्टर बिकमिंग अ मॉम. और men don't really care about it, or we can't even expect desi men to be very conscious and conscientious about such things. कि जी मैं इसके साथ, my husband is very kind towards me most of the time. कि मतलब हमारा तो मतलब औरतों का तो इस तरह का एक वो आप देखें ना, एक पर्सपेक्टिव ही है. तो वो थोड़ा सा ख़वातीन के लिए एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है. और शायद उनके लिए उनको ये भी लगा होगा कि अच्छा हमारे साथ भी तो यही था, लेकिन हम तो नहीं कहते थे कि डिप्रेशन है, हमने तो नहीं कहा, तो ये क्यों कह रहे हैं. मैंने भी नहीं कहा. To be very honest, when I was going through the tougher time, I didn't say it. I say it now so that it is accepted and it is it is not tabooed as such. क्योंकि आगे भी तो होगा ना. आगे अगर कोई भी लड़की who goes through a birth, it can happen to her as well. May it be my sister-in-law, may it be my own my sister-in-law meaning my bhabhi, or my nand, or my daughter. It could be anyone. So if I start and speak about it, maybe it will help normalize it. क्योंकि है एक चीज़ होती है, most women go through it. It's not a small percentage. It's actually a bigger percentage of women who go through it. Younger women go through it more, पर वो बेचारी वैसे इतनी परेशानियों में होती हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता, ना उनको बताया जाता है. पाकिस्तान में most girls get married too young. I was older. I was more sort of set in my ways. I knew what happened to me. It has changed me in a certain manner. It has sort of slowed me down. मेरे क्या phases आ रहे हैं वो सब कुछ. तो I have to speak about it. I feel it's a responsibility as well. Like to be the cycle breaker, obviously. I mean, यहाँ पे in most of the episodes, in most of the women that I have talked to, we have always talked about that we have to be the cycle breakers, be it anything. मतलब डिप्रेशन की बात हो गई और बिल्डिंग योर ओन आइडेंटिटी की बात हो गई, लाइक कोई भी चीज़ है, एटलीस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ, यू आर एक्सेप्टिंग इट नाउ. आई थिंक विद द ओल्डर जनरेशन वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि लाइक सफरिंग को ग्लोरीफाई कर दिया है. उसके बारे में बिल्कुल भी आप कह नहीं सकते हो आप, और कहोगे भी तो ऐसे कहोगे कि मैंने भी तो सब बर्दाश्त किया था. आई मीन इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. It was actually a time you should have stood up and said, given somebody a cold call and said bus, enough.
हाँ, इस बारे में नहीं ना बात होती, उनको लगता है बिकॉज वी वेंट थ्रू इट, यू गो थ्रू इट एज वेल एंड बी क्वाइट अबाउट इट एंड बी थैंकफुल अबाउट इट। हाँ। कि अच्छा चलो शादी हुई है, अच्छी बात है, कोई नहीं, यही मसले, शादी तो हो गई, अच्छा बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, अब बच्चे तो हो गए ना, मतलब इट्स ऑलवेज दैट, वही जो मैंने शुरू में बात की कि ये समझा जाता है कि बस कोई भी जो चीज़ अच्छी हमारी सोसाइटी ने अपने जहन में बना ली है ना, इट हैज़ टू कम थ्रू दिस lot of troubles and pains, और अगर पेन नहीं आई, मतलब literally can you imagine, I have even heard people giving this, मतलब I can't even imagine कि वो क्या एग्जाम्पल देते हैं ससुराल में अगर आप जा रहे हो शादी के बाद, they'll tell कि जिस तरह मेहंदी को जितना पीसो उसका रंग निकलता है ना और वो बड़ी देर तक रहता है, इसी तरह शादी के बाद शुरू में बहुत मुश्किलें आती हैं और उसके बाद आप जो है ना बहुत स्टेबल हो जाते हो, आपके कदम जम जाते हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ लाइक, मतलब व्हाट आर दीज थिंग्स दैट वी आर टेलिंग आवर इतना स्टेबल आप हुए होते ना तो आपकी एक मेंटली इल सोसाइटी ना होती। हाँ। आपकी इस तरह की सोसाइटी ना होती जिसमें विमेन बीइंग मदर इन लॉज वांट टू डोमिनेट देयर मैरिड Exactly. सन्स लाइफ फॉर हाँ। द एंटायर लाइफ, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी हैप्पीनेस में नहीं गुजरी। हाँ। वो किसी और को हैप्पी भी नहीं देख पा रही हैं। हाँ, हाँ। वो किसी और को मतलब अपना बेटा भी नहीं दे पा रही। दे सॉर्ट ऑफ लिविंग वाइकेरियसली फ्रॉम देयर seeking male attention from their sons that they never Exactly. got from their own husbands. Yeah, तो yeah. नहीं, क्योंकि आपको जितने चाहें वो जवानी में ही निकलने हैं। बुढ़ापे में फिर आप सिर्फ जो है ना वो एक अपने आप को भी तंग करेंगे और दूसरे की भी ज़िंदगी तबाह करेंगे, और फिर वो साइकिल चलता जाएगा इट विल कंटिन्यू। और ये हमारी सोसाइटी में बड़ा नॉर्मल है, मतलब मेरी अपनी अम्मी ने सफ़र किया और बहुत सारी ख़वातीन सफ़र करती हैं कि जी सास जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को, अपनी फैमिली को बनाते हुए खुश देखना नहीं चाह रही है। हम यूँ देखें इर्द गिर्द में तो हमें आधी से ज़्यादा एग्जांपल्स ये मिल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज भाई उसकी अपनी ज़िंदगी बन जाने दो ना, आपके सामने अच्छा खुश नज़र आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो हमारी एक मेंटली इल सोसाइटी बन रही है। कोई कोई हमारा अच्छा नहीं निकल रहा पिस के सिर्फ ये है कि आप तैयार हो रहे हैं कि अगली दफ़ा कोई आएगी ना मेरे हाथ, उसको भी ऐसे ही पीसूंगी मैं। Exactly. मतलब उसका भी भुरकस निकालूंगी। हाँ। और वो जो आप कह रही थी कि हमारे यहाँ सफरिंग को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे हर किसी को शहीद बनने का बड़ा शौक है। वैसे को सड़क पे जाता हुआ मर जाए तो जी ऑफिस जा रहा था शहीद था, ये नहीं सोचेंगे कि वो ऑफिस जाते हुए शहीद था, वो यहाँ साइड से मोटर बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था, उस गाड़ी वाले का कोई कसूर नहीं था। दफ्तर 5 मिनट पहले निकल जाता भाई घर से, तो फिर वो मतलब कोई नहीं शहीद होता और कोई औरत नहीं शहीद हो रही। आप अपने बच्चों का अगर कर रही हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रही, विच नाउ इज़ अ ट्रेंड टू एक्सेप्ट कि भाई इन्हीं की लाइफ है। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड she has a little older baby than mine. Her daughter is 5, and she was talking about how she was alone in a different country, और वहाँ पर उसकी बेटी हुई और उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया, और उसको भी मतलब कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एंग्जाइटी और क्या हो रहा है। एंड एज देसी women we have so much emotional burden that I obsess more about shifting this to my daughter than do actual parenting. Yeah. And you know our parents वो हमें इस तरह रेज कर चुके हैं कि जैसे हमें लगता है कि सब चीज़ें हम पे उनका एहसान था। एहसान, एग्जैक्टली। आपने कुछ भी किया, आपने एहसान नहीं किया, आपकी चॉइस थी, आपने बच्चा पैदा किया। मेरी चॉइस है, मैंने बच्चा पैदा किया। शी डज नॉट ओ मी एनीथिंग अदर देन सम रिस्पेक्ट विच इफ आई गिव शी विल गिव बैक। more it depends on me as well. So I was telling my daughter the concept of respect this morning, and while we talk a lot, me and my daughter, and I always
like to, you know, give her some sort of insight, because she's a very curious little creature. तो That's very sweet. तो वो मुझसे कहती है, मामा आप मुझे डांटती हैं समटाइम्स, पर आप समटाइम्स मुझे नहीं डांटती हैं. मैंने कहा बेटा मैं समटाइम्स आपको डांट देती हूँ, या समटाइम्स आप मेरे से एंग्री बोलोगे तो मैं भी आपसे एंग्री बोलूँगी, लेकिन आपने देखा है कि मोर टाइम्स मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ और मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप भी बैड थिंग्स नहीं करते हो. तो हम इसी तरह का बोलना शुरू हो गए. अब क्योंकि हम स्कूल जाना शुरू हुए, तो हम पहले सिर्फ उर्दू बोलते थे और अब हम सिर्फ जो है ना वो एक मिक्स बोल रहे हैं. Next door close कर दो. डोर वो वाला क्लोज तो कर चल दो, रहा है. मुंह ओपन कर दो. तो Yeah. क्योंकि वो उसको ना शी हैज़ रिप्लेस्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जो कि वो Yeah. अंग्रेज़ी और उर्दू मिक्स करके बोलती है, और वो अनकॉन्शियसली हम भी तो यही बोल रहे हैं ना, हाँ, हम भी एक ऐसी है. मिक्सचर सा ही बोल रहे हैं. हाँ. हम कौन सी एक लैंग्वेज में पूरी कन्वर्सेशन हाँ, कर ऐसी पाते. है. So I was telling her the concept of respect this morning, and you know, when you talk to me with respect, I'll talk to you with respect, and you know, and that is all I expect from her. She does not owe me to get a degree, to get married, to support me being an only child. She does not owe it to me. अगर कर देगी तो अच्छी बात है. I will be very very grateful to Allah Miya more than her. Yeah, probably yeah. कि जी मुझे भी अच्छी औलाद मिली. लेकिन ये कि अगर नहीं कर पाएगी किसी भी रीजंस की वजह से, तो मैंने उसके आने के लिए दुआ की थी. उसको तो आने की कोई जल्दी नहीं थी. उसने तो नहीं कहा था कि मुझे लेके आए. तो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल, यंग पेरेंट्स स्पेशली, जो कि अभी अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे हैं जिनके, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए. ये नहीं कि आप बच्चे को पहले दिन से यही समझाते रहें कि बेटा तुम बड़े हो गए तो तुमने हमारी जिम्मेदारी लेनी है. आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें. Okay, now wrapping it up, anything that you would like to tell to the new moms who are probably going through postpartum depression but they're not aware of it, anything that you can tell them to help them manage it well? So I think the most important aspect of managing and you know, going through postpartum depression in a better way would be to accept it. It is very important for you to accept it, for you to start talking about it to people who matter, and the most important person in this equation right now is your partner, is your spouse. If you're still hoping and thinking of remaining with that person, it's more important for that person to accept it than for anyone else. तो अगर since I was reading upon postpartum depression earlier when I was coming here, और उसमें मुझे जो चीज़ लग रही थी कि मतलब most moms go through it. It's not a small fraction of new mothers who go through it. Most of us women go through it, क्योंकि आपकी बॉडी एक इतना बड़ा चेंज करती है कि उससे सारा कुछ ट्रिगर हो जाता है ना. आपकी डिफरेंट केमिकल्स इन योर ब्रेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, एंड it happens for almost everyone, and then you might go through it for a small period, and when you go through it for a prolonged period, it is called postpartum depression. So it happens to maybe everyone. I'm not a medical expert, I'm not a psychiatrist or a psychologist, I don't know about the exact number or how it is happening, since my medical research is not you know, that in depth. लेकिन सबको होता है, और फिर उसके बाद अगर लंबा हो जाए तो असेस करें, रियलाइज़ करें कि मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है. इट्स नॉट जस्ट माई बॉडी गोइंग थ्रू यू नो a recovery phase. It is maybe more than that, and if it is more than that, talk to your spouse. सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी ज़िंदगी में वही है. तो क्योंकि आपकी एक फैमिली यूनिट उसके साथ ही बनेगा. आप इस बच्चे को रेज़ भी उसी के साथ कर रहे होंगे. तो अपने मियाँ को भी बताएं भाई,
उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि आपके साथ कुछ हो रहा है। ये नहीं कि हाँ ठीक है, वो 9 महीने तो आपका ख्याल रखा गया था, पहला बच्चा होने में तो रखा ही जाता है, लेकिन इवन इफ इट्स द सेकेंड और थर्ड चाइल्ड दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि जी मतलब यू हैव एल्डर चिल्ड्रन who are still your responsibility. So that person is the most important person to be able to help you in that situation. तो उनको भी बताएं कि मेरे वो ख़त्म नहीं हुआ मेरा सो और वैसे भी अगर देखा जाए तो फोर्थ ट्राइमेस्टर तो हम कहते ही हैं, 3 महीने का दोबारा रिकवरी का टाइम आपका और बच्चे का अभी भी होता है। और जो हम डेवलपमेंट चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से बात करते हैं कभी, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टाइम ये होता है कि फर्स्ट 1000 डेज from the time of conception to the time that a child is 1000 days on are very important. So वो अगर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है तो हो सकता है माँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। और वो हो सकता है कि वो माँ के लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट हो कि इस वक्त मेरा बच्चा पैदा तो हो गया है, लेकिन अब मैं इसे पालूँ कैसे। फर्स्ट चाइल्ड की दफ़ा तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपको कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट चाइल्ड की दफ़ा ही हो सकता है कि आपका फर्स्ट चाइल्ड का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो और सेकंड चाइल्ड का बिल्कुल डिफरेंट। तो वो मियाँ को पता होना चाहिए। थेरेपी तो हम कम कम ही कराते हैं, मगर हम अपना शेयर तो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि दुख बांटने से आधा रह जाता है, तो वो वाला ही एस्पेक्ट इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम बता तो सकें बगैर इस फियर के कि इसको टैबू समझा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बगैर इस फियर के कि इसको टैबू समझा जाएगा। पिछले साल जब अभी कोविड था और अभी कम कम आपकी मुलाकात होती थी लोगों से या कुछ, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स घर आते तो एवरीवन वुड से योर डॉटर इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस, अच्छी, वेल मैनर्ड है। एंड माई हस्बैंड वुड से कि my wife had more to contribute to it than I did, and it was very helpful for somebody who was going through a traumatic experience and who who was recovering at that time। कि मतलब मुझे फिर कोविड में भी एक अपने ट्रिगर्स थे, वैसे ही हर कोई परेशान था, जर्मोफोब बन गए थे हम सारे। तो वो उस टाइम में और फिर उसके बाद जब आप एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे थे, तो ये एक्सेप्टेंस आपके स्पाउस की तरफ से बहुत अच्छी लगती है। तो अगर एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग इट आउट लाउड, मतलब इट ऑल गेव मी द करेज टू एक्सेप्ट इट। मुझे नज़र आ रहा था कि और लोगों को नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा था कि और लोग मेरी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, मेरी हरकतों से, कि जी मैं बच्चा ही नहीं छोड़ सकती। मेरी बेटी का मेरे से इतना कोई शदीद किस्म का बॉन्ड है जितना बाकी इर्द गिर्द के बच्चे देखूं तो उनकी माओ के साथ उनका इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि अच्छा हम अकेले रहे, हम लोग 2 साल के लिए बिल्कुल फ्लैट में बंद हो गए। उसके एजमेटिक होने की वजह से, उसके लंग्स की स्ट्रगल की वजह से, तो वो उसको नज़र ही सिर्फ माँ आती थी, इसलिए वो माँ के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं। लेकिन उसमें एक बड़ी रीज़न ये भी है कि मैं उसको दूर कर पाती तो वो दूर होती ना, मेरे से तो दूर ही नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये कि जब कोई और एक्सेप्ट करता है और आपका सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ हु यू गिवन दैट, मेरे बाद ये वाला मतलब लेवल आपने दिया हुआ है कि अच्छा हाँ मैं, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, ये हम एक इकाई बन जाते हैं, माशरती उसमें एक यूनिट बन जाते हैं। तो वाई that helps a lot. So please speak about it. Please speak about it to your husband. Please tell if your ससुराल is accepting or not. दोनों तरह हो सकता है। मेरे बहुत एजुकेटेड ससुराल है, बड़ी उसमें है, लेकिन ये कि उधर भी यंगर लोगों के लिए एक्सेप्ट करना आसान था, ओल्डर लोगों के लिए मुश्किल था।
तो मेरे अंदर जो चेंजेस आ गए वो मेरी अपनी पर्सनालिटी के भी चेंजेस हो गए, तो वो सारा का सारा इट्स एन एवोल्यूशन। एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन यू इवॉल्व, एंड आप बहुत डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं उसके बाद। तो एक्सेप्ट करें, थेरेपी ले सकते हैं, ले नहीं ले सकते, कोई दीन में दिल लगाने का दिल चाहता है, दीन से दिल लगाए, बच्चों में कोई दिल लग सकता है उसमें लगाएं, सोशल लाइफ करें, कुछ भी करें आप, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि हो गया। ये नहीं है कि मैं पागल हो गई इस बात से, कोई नहीं पागल हो रहा, और हम अगर पागल हो रहे तो हमारे मुआशरे में आधे से ज़्यादा लोग पागल हैं। वो मर्द बेचारा जो रोज़ बाइक पे बाहर निकलता है ठंड में या शदीद तपती हुई दोपहर में, वो फाइनेंशियल नीड्स मीट करने के लिए उसके अंदर भी एंजाइटी है। ठीक है, तो मर्दों को तो कोई ये नहीं कहता कि तुम घर आके जो बच्चों पे चीख रहे हो तुम पागल हो गए, रोज़ चीखते हैं। रोज़ मर्द घर आते हैं, रोज़ अपने बच्चों पे चीख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल एंजाइटी उसके अंदर प्रेजेंट है। उनको किसी को कहने की ज़रूरत, हिम्मत, हौसला नहीं है कि भाई तुम पागल हो गए। एक वो औरत जो कह रही है अच्छा बेटा रुक जाओ, या एक थप्पड़ लगा दिया बच्चे को किसी का किसी तरह भी निकल रहा है, तो उसको सब लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल बौला गई हैं भाई, ये तो बच्चा पैदा करके ऐसी हो गई कि इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, इनका कोई तो वो सारा का सारा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें लोगों की एंग्जाइटीज़, उनके ट्रिगर्स, उनकी रीजंस हमें मान लेने चाहिए कि हम सारे इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव आवर फ्लॉज, we will evolve as human beings with these flaws. Thank you so much, Madad. I think the most important part, it always comes down to, especially in a marriage, it comes down to the concept of accepting कि शादी एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इक्वल लेवल की होती है तो ही चीज़ें ऑब्वियसली फिर आप मैनेज कर सकते हो, आगे लेके चल सकते हो। इसी तरह पेरेंटिंग, को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब वही बात बार बार होती है और अब इसके ऊपर काफ़ी बात भी होती है कि बाप बच्चे को बेबी सिट नहीं कर रहा, वो भी पेरेंटिंग ही कर रहा है। बट इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सेप्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग योर मैरिज एज एन इक्वल पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप होगी डेफिनेटली, आप एक्सेप्टेंस भी तभी कर सकते हो और आप शेयरिंग भी तभी कर सकते हो और आप उसको मैनेज भी तभी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ओवर एंड इट्स वेरी like I said in the start, very inspiring of you and brave of you to share all these things, and I'm sure it is going to help a lot of women who are still struggling with the idea of accepting कि हाँ ये हो गया है या ये जो हो रहा है, this is not me actually in real. Thank you so much. See you soon in another episode.